rather to start with our pre-PhD coursework, we have with us respected Dr. Nikhil Attare sir. Sir, welcome to pre-PhD coursework organized by UGC HRDC Nagpur. And I hope you all are doing well at your own respective places. So friends, Yes. the today's speaker, Dr. Nikhil Attare sir, uh, he has total 24 years of experience in corporate world, of which 18 years is overseas experience with leading multinational corporations in United States, Singapore, Thailand in senior management positions as Chief Finance Officer. Friend, sir is a visiting faculty at leading B schools in Thailand, Malaysia and Singapore. His expertise is in corporate finance and he has delivered over 100 lectures at various international conferences. In India, Sir is associated with RTM Nagpur University and SEG Amravati University as a visiting faculty at Department of Business Management. Sir, research work includes regional development work carried out in Maharashtra. Till date, he has published 6 national and 2 international research papers. He has also contributed a chapter on CSR book published by Cambridge University Press UK. He is extensively traveled across the globe and has visited near about 63 countries. So with this brief introduction, I once again welcome you, sir, and I request you to please enlighten the participants on the topics understanding research process and further part of Unit 1. Sir, please. Okay. Thank you, Dr. Pratiji. Good morning, all. We will make this as a interactive session. Okay. So there will be some questions, some discussions. You may also share your opinions. If you agree, if you disagree, we can have a debate also. And at the end of today's and tomorrow's session, you should have a fair understanding of issues related to your two modules, which is the research process, the motivation, the proposal for grant, and the ethical issues while conducting the research. I'll be talking mostly in English, Hindi, and little bit in Marathi, and we will make it as a interactive session so that I can also learn something from you. Whatever I will be telling you in today's first session, I think 70–80% of you know it already. So it won't be something of a rocket science, but that approach we have to undertake while conducting the research is very important. And if we can fix that approach at a very early stage, then probably the final product or the outcome will be of higher quality. Okay. As you are all joining this 7, 8, 9, 10 days session or program conducted by Academic Staff College, end of your training session, there will be an examination. So all of you will have to pass that examination so that you will be eligible to submit your research work to the PhD cell in the university department. So while going through the slides and session, whichever is important from the examination point of view, I will emphasize on that. So kindly have a paper and pencil with you so that you can, you know, take a note of those important aspects which will be covered most likely into your final online examination. Okay. Again, as I said earlier, I'm not going to teach you something out of the world. It is very simple. All of you probably may know it, but we will try to understand the process itself. See how that process should be fine-tuned so that the outcome will be as per our expectation. Okay. So to begin with, can you please tell me why do we conduct research? हम research क्यों करते हैं? किस लिए करते हैं? Any input? Any views? Why do we do research? Sir, this is Harish Kutemate. Sometime one of the aspect of doing research is to find out something new or to give the new dimension to the existing things.
Very good. Very good. Anything else? Innovation process. Okay, fair enough. Very good. Anything else? Hello, Yes. sir, for बोलिए तिवारी innovation, for innovation, innovation Kapil ji. Okay, fair enough. Kapil Fulwani, fair enough. Innovation और और क्या होता है? क्यों करते हैं हम रिसर्च? Right? So, as couple of you have said, it is absolutely correct. Okay. There is one more dimension which I will talk to you on the next slide. So, let's understand the process. Okay. Here, slide next कसं करायचं? How do I? ये second slide पे सर कसं एकदा जायचं? स्क्रीनवरती क्लिक करा अँड देन गो ऑन नेक्स्ट. ते पॉज झालं असेल. नाही स्क्रीनवर करतोय मी क्लिक. एक मिनिट. नाही हे हलत नाहीये. हे सगळ्यांना दिसतंय ना? सर फर्स्ट स्लाइडच आहे आपली अंडरस्टँडिंग रिसर्च प्रोसेस. हा. नाही ते याला एक मिनिट मी परत एकदा हा share हा सर करायला स्टॉप शेअरिंग करून परत एकदा करून. तर बघतो मी हा. एक मिनिट हा. जनरली ऐसा होता नहीं है ये. होल्ड ऑन हा. येस सर. स्टॉप शेअरिंग. ओके. screen. एक मिनिट. स्टॉप शेअरिंग येत नाहीये मॅडम. सर इट मे बी ना हँग्ड. सर just try once or you can leave the meeting and then rejoin. हा. Yes. बरं एक मिनिट कारण ना हे मला काय झालंय का? ओके मी एकदा परत एक्झिट करतो Yes. आणि परत रिजॉइन करतो. हो सर हो प्लीज. फ्रेंड्स थोड़ा वेट करिए. सर के इधर से कुछ इशू है तो सर फिर से ज्वाइन कर रहे हैं. no problem, ma'am. Many of your batchmates are also facing the problem during joining. I don't know why. Have you started your preparation of seminar? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because from today you will be busy from 10:30 to 5 o'clock completely in our course. So जैसे जैसे आपको बीच बीच में टाइम मिलता है आप उसको यूटिलाइज करिए. Various motivations for conducting the research. The great scientist Albert Einstein said that if we know what we are doing, then it wouldn't be considered as a research, right? So research is basically trying to go into the unknown, right? That's what we do. We formulate a statement of problem, and at the end of our research, we try to see what are our findings. So going into unknown is one of the prima facie objective of the research. As I said to you earlier, besides all the objective that you have told me, one of the objective of the research is this. It should address the long-standing problem in specific domain.
जैसे भी हम सब जानते हैं कि अभी कोरोना का नया वेरिएंट आया हुआ है, डबल म्यूटेशन वेरिएंट बोलते हैं, इसका भी कोई सॉल्यूशन आएगा. सो इट इज अ वेरी रिसेंट प्रॉब्लम, बट देन व्हेन वी लुक एट द वर्ल्ड और सोशो इकोनॉमिक स्फीयर, there are many problematic areas in each geography. जैसे अगर हम नागपुर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो the problematic area in our region is the farmer distress, the lack of water, increased pollution. Then we have traffic congestion problems in urban areas. We have the work-life balance issues in areas where lot of family members are working. So जो भी एरिया के प्रॉब्लम होते हैं वो हमारे रिसर्च से एड्रेस होने चाहिए. इसकी नींव 2009 में रखी गई थी when Kapil Sibal was Union HRD Minister. Basically it was decided that all the universities will focus on the research in their geographies addressing the problems, right? So say in Mumbai or Bangalore or in Jodhpur or in Amritsar, the problem will be slightly different. But when we look at our own geographic area, Vidarbha as a landmass, which include Amravati, Gondwana and Nagpur University, then our research must or should address the long-standing problem. Research can be very diverse in nature. Okay, under the UGC ordinance, the candidate is given full flexibility to conduct interdisciplinary research or research related to any topic he or she chooses to wishes to conduct on that. So there are no boundaries, no limitation even in a academic research. The only issue that arises is the time limit that we have to fulfill it within a span of 60 months. तो आप किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च कर सकते हो. However, one of the thing which has been categorically mentioned is that there is a word re in the research. मतलब फिर से जाके उसकी खोज करो. Go and search again. So say for example, somebody has done a research on certain topic between 1990 to 2000. Okay, now you wanted to know how that data will be looking, say from 2015 to 2025. So even if you take the same topic with different time series data and probably a different method, I'm not saying we have to adopt the same method. Even if you apply आवाज the येत same नाही. method, am I audible? Yes, sir, you are audible. Please continue. आवाज कट Madam, होतोय. Yes, sir. You are audible, sir. Sir, येतोय आवाज. So even if we take a time series data of 2015 to 2025, same method, the findings will be different because data will be changing. However, it is recommended that when a candidate is revisiting the same topic or the topic under the same domain, it is expected that he or she should deploy a new methodology that will yield certainly a different kind of outcome. So there is a re in the research. That means we don't have to reinvent the wheel. किसी ने पहले काम किया है तो आप उस काम को एक नए अंदाज से देखकर एक नई मेथड लगाकर उसके अलग आउटकम आप निकाल सकते हो. If you look at the definition of what is research, that we all know. So the simplistic definition is finding answers to the question in organized, logical and systematic fashion. तो कोई भी डॉक्टरल डेजर्टेशन करते समय ये तीन चीजों का होना ये अनिवार्य है. पहला, ऑर्गेनाइज. When a candidate is conducting a research, he or she should be fully organized. Fully organized in the sense that all the procedure, all the protocol, all the tools
have to be utilized properly so that the work reaches the objective and you do not get sidetracked. Second is a logical, ज्याला आपण मराठीमध्ये तर्क म्हणतो. तर प्रत्येक गोष्टीवर तर्क आले पाहिजेत. यू मस्ट बी मेकिंग अ लॉजिकल आर्ग्युमेंट while presenting your findings or debating the discussions or the outcome, or even during the literature review also, logical argument could be put forward. Say for example, if you are using a particular definition in your research, and if you see in a literature review some other academicians or scholars have used a different definition which is not aligned to your definition, then you must put a logical argument as to why you are seeing this definition in the context of your own research in this particular way. Am I clear? Secondly, at every step of your research, there has to be a logical argument within you कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये कैसे होने वाला है, ये ऐसा ही क्यों है, ये अगर वैसा हुआ तो क्या होगा, ये ऐसा नहीं किया तो क्या होगा. So a candidate has to be indulged with himself or herself at all the time while taking further steps in the research. Say for example, you are deciding a research method or a design. Then you have to ask yourself a question that why you have chosen this particular design. Is there any way that you could have chosen other design for that? If you are choosing that particular design, what is your objective and what is your rationale? तो इसको हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं. आपके हर स्टेप में रिसर्च के लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आना ये अनिवार्य है, मैंडेटरी है. कई बार कैंडिडेट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट डालते हैं बट वो डिबेटेबल नहीं होते, वो एक डिस्क्रिप्टिव आर्ग्यूमेंट के तरीके से उसको डाला जाता है. दैट इज ऑल्सो फाइन. आई एम नॉट सेइंग समथिंग रॉन्ग विद दैट, बट इफ यू कुड क्लियरली note down at what juncture and at what point, to what extent logical argument has to be put forward, then it will give a better shape to your research. And thirdly, systematic fashion. आने वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा. सिस्टमैटिक फैशन का मतलब ये है, जैसे कि आप खाना खाते हो तो टिपिकली हम स्टार्टर, एपेटाइजर से लेके मेन कोर्स से लेके डेजर्ट तक खाना खाते हैं. देयर आर एक्सेप्शन, कोई लोग उल्टा सीधा भी खाते होंगे, बट वैसे ही रिसर्च करते समय इट स्टार्ट्स विथ द प्लॅनिंग. त्याला आपण मराठीत नियोजन म्हणतो की माझं संशोधनाच्या कार्यामध्ये माझी नियोजनाची व्यवस्था काय राहील. व्हॉट विल बी द एलिमेंट ऑफ प्लॅनिंग while I'm conducting the research. Okay, and till the time you finish your work, you submit your thesis, you face the viva voce examination, you are awarded the degree, and you keep all the document of your research data in a safe manner. That point, the systematic fashion is required. Okay, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे. अब कई बार ये देखा गया है कि रिसर्चर ये बायस्ड होता है. उसको लगता है कि व्हेन आई एम कंडक्टिंग अ रिसर्च ऑन सर्टेन प्रॉब्लम और अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, आई विल डेफिनेटली गेट टू द ट्रूथ. वो बायस होता है, उसको लगता है कि मैं सच्चाई के पास जाऊंगा या पहुंचूंगा. बट in realistic scenario, you will be never reaching the truth. Okay, there are very few exceptions. If you take on a percentage wise, hardly I would say 1% will be even maximum. So आप सच्चाई के पास कतई नहीं जाओगे. वो राह पे आप चलोगे, but you will never reach the truth. Okay,
अगर कोई बाय मिस्टेक या बाय कोइंसिडेंस या बाय एक्सीडेंट ट्रूथ के पास पहुंच जाता है, दैट इज फाइन, इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्शनल केस, बट रादर इट इज एन एक्सरसाइज। वो आपका एक जर्नी होगा जहां पे आप सच्चाई के खोज पे जाओगे, राइट? वन थिंग एज ए रिसर्चर, every one of you must keep in mind that there is no such thing as 100.00%. बरोबर आहे? 100% कुठे असतं का आपल्या आयुष्यात? कुठेच नसतं. Even if you want to buy a purest of the pure gold, it is 999.999. म्हणजे सोनं सुद्धा 100% नसतं. While conducting research, we always use statistical tools. तो उसमें भी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल कितने का लगाते हैं? मैक्स 95%. दैट मीन्स देर इज अ 5% चांस दैट द फाइंडिंग मे नॉट बी अप्रोप्रिएट, राइट? इवन इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, जब हम कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोग 45 के ऊपर के हैं, तो अभी आई एम अबाउट 45, मैंने मेरा पहला शॉट लिया. What is the efficacy of that vaccine? 74%. So even after you take 2 doses, you still have the chance of 26% of getting infection. So there is no such thing as 100% in the world of science. कतई नहीं है. इसीलिए स्पेशली साइंस के लोग, मैं सोशल साइंस या मैनेजमेंट, आर्ट, कॉमर्स, हिस्ट्री उसके ऊपर बाद में आऊंगा, बट साइंस के लोग ये ध्यान में रख ले कि आप सच्चाई के पास कभी भी नहीं पहुंचोगे. यू विल कम वेरी क्लोज टू इट, बट इट विल नॉट बी दी अल्टीमेट ट्रूथ, राइट? एंड द लास्ट पॉइंट विच आई हैव ऑलरेडी mentioned earlier, it should address the long standing problem in a specific domain. There was a research conducted by, PhD research conducted by a candidate in a VNIT. I happened to see his thesis and I was very surprised. I think his work was mostly related to blind people. There was some taluka or some village in Vidarbha where the number of blinds, the elderly blinds, were relatively high. अब मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, probably वो वरोरा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का कोई ब्लॉक था. So what he did basically is to come out with something that will enable these blind people to function their day-to-day activity with minimum hiccups or minimum disturbance. वो एक practical मॉडल उसने बनाया था जो इम्प्लीमेंट भी करके देखा. वो अगर सक्सेसफुल होता है तो इट कुड बी डिप्लॉयड 100% across the world, but I don't think वो हुआ है. Similarly, recently 5-6 months ago, one student from Northeast, he devised a glass. वो चश्मे पे कैमरे लगे हुए, टाइनी टाइनी कैमरे, और वो अंधे लोगों को वो चश्मा पहनाते हैं. वो केवल नॉमिनल चश्मा होता है, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता है. और ये कैमरे जो है, उसका साउंड इंटरफेस उसके कान में जाता है और वो कैमरा बताएगा कि आगे पत्थर है, आगे स्पीड ब्रेकर है, आगे स्कूटर पार्क किए. वो भी एक इनोवेशन ही था उसके पार्ट ऑफ रिसर्च का. तो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ एड्रेसिंग दी सोसाइटल प्रॉब्लम विया दी रिसर्च इटसेल्फ. अगर हम नॉन साइंस की अगर बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल फार्मर सुसाइड, so can somebody come up with a very concrete research and definitely throw a new perspective on why the farmers are committing suicide? अब ये कोई नया टॉपिक तो नहीं है. The topic is very old in the sense almost 2 decades now. So has any study attributed towards eliminating this thing? To certain extent, I may say yes. But can farmer suicide be stopped 100%? The answer will be probably not, or it will be difficult. So, 3 दिन पहले मैं राजेंद्र पवार जो है, वो पवार खानदान के, उनका एबीपी माझा पे इंटरव्यू आ रहा था. So one of the thing he mentioned that a farmer should be passionate about his or her work. Suicide happens because of mainly the financial distress and agricultural distress, because in cases where you do not have irrigated water,
You depend on the monsoon, and if the monsoon cycle changes, he is directly exposed to the climatic action. So there are thousands of variables which are attributed towards the culmination of farmer suicide. However, none of the concrete parameters were identified to say that this will prevent, है ना? जैसे अभी शुरुआत में प्रीति मैडम ने बोला कि होप एवरीबडी सेफ, मेरे घर में भी एक कोरोना पॉजिटिव केस है. सो ऑल वी आर डूइंग टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट इज फैबीफ्लू नाम की जो दवाई है वो हम दे रहे हैं. वो 2 दिन बाद वो उसके असर दिखने लगते हैं, और वो माइल्ड केस होगा तो वो माइल्ड केस कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाता है. बट इज इट द अल्टीमेट सॉल्यूशन? प्रोबेबली नॉट. अभी जो एपिडेमिक पे जो भी चल रहा है दुनिया में, वो मोस्टली ट्रायल एंड एरर चल रहा है. बट दोज विच आर प्रूवन डिसीजेस, वहां पे विथ हायर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर इंटरवेंशन is more likely to be successful. So these are some of the attributes. Now, if we look at why human being as a species had a quest for searching the truth, ये सब कहाँ से शुरू हुआ? So if we go into the ancient civilization, three things were very predominant: tradition, custom, and authority. All these three things culminated into the so-called head of the tribe, or the king, or the authority person in the kingdom, or the king himself along with some scholar. They ordered, or they took interest in discovering something. It was a journey of discovery. जैसे कोलंबस खुद घूमने गया था, और कोलंबस ने कई सारी चीजें जो सी रूट पे कई सारी कंट्रीज है वो उसने ढूंढी. वास्को द गामा ने भी वही किया. बट हियर व्हेन इट कम्स टू बी सर्चिंग फॉर द ट्रूथ, द ट्रेडिशन, कस्टम एंड ऑथोरिटी प्लेड अ वेरी वाइटल रोल. अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी अगर लोगे, सो इन अ हिस्टोरिकल ग्रीक ऑल दी सो कॉल्ड जो धर्मगुरु थे, हम थोड़ी मॉडर्न इरा की बात करते हैं, दैट मीन्स आफ्टर द क्रिश्चियनिटी, नॉट बीसी, हम एडी की बात करते हैं. सो जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्रिश्चियनिटी, the people started discovering number of things which were surrounded. So one of the things which came out of the Greece was earth is spherical. आता मला सांगा, अर्थ इज स्पेरिकल आहे हे सगळ्यात पहिले कोणी मानलं होतं हे तथ्य? हु वॉज अ पर्सन हु सेड अर्थ इज स्पेरिकल? कौन था? एनी आइडिया, एनी गेस? गॅलिलिओ. नो, गॅलिलिओनी बरेच दुसरे काही केले. यू आर क्लोज, नॉट गॅलिलिओ. एनी वन मोर गेस? It was Copernicus. Okay, so it was Copernicus who put forward his argument saying that Earth is spherical and Earth is revolving around the sun. What happened to Copernicus? He was killed. Why he was killed? Because the higher authorities at that time strongly believed that Earth is rectangular and Earth is not a part of solar system. So they thought Copernicus' findings were useless, and they poisoned him, and he ultimately has to sacrifice his life. Why? Because he cannot substantiate his finding. तो जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, हमें अपने फाइंडिंग्स को सब्सटैंशिएट करना है. टू सब्सटैंशिएट मीन्स व्हाट? मीन्स टू क्वांटिफाई. टू क्वांटिफाई मीन्स व्हाट? मीन्स टू एस्टैब्लिश सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप and test that relationship. You get it what I'm saying?
then only based on the strength of the relationship, the quantification or the substantiation can be accepted. जैसे अभी भी जो हमारी इंडिया की वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको कोविशील्ड के बाद परमिशन मिली. ऑल दीज वैक्सीन मेकर्स आर टेस्टिंग ऑन दी patient first, and based on their test outcome, the efficacy is decided and the permission is granted for them. So unless and until we quantify, कल अगर अभी which was a joke, जो बाबा रामदेव ने बोला था कोरोनिल से कोरोना बीमारी हट जाती है, कोरोनिल इज नथिंग, उसका कोई साइंटिफिक मेजर नहीं है. इट इज नॉट अ वैक्सीन, इट मे बी अ सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट, बट in the face of science, coronil has zero weightage. If, say for example, Preeti madam wants to design a new vaccine, she is free to do so, provided she conduct a test, show the data, and once the data is accepted to the Food and Drug Administration or ICMR or the controlling authority, then her drug will go on the trial, right? वही अगर आप थोड़ी जानकारी रखते हो, अभी जो रेमडेसिविर की किल्लत चल रही है, ये बेसिकली कोरोना का ड्रग था ही नहीं, ये किसी और चीज के लिए बनाया गया ड्रग था. एंड समहाउ ये कोरोना से अभी आपका डेथ को प्रोलॉन्ग करता है, वो मरने नहीं देता है. तो अभी ये जो किल्लत होती है, सो रेमडेसिविर भी किसी और चीज के लिए ढूंढा गया था, बट अभी किसी और चीज के लिए उसके सिम्टम जो है वो क्यूरिंग करने की एबिलिटी में देखे जा रहे हैं. Then the third and most powerful quest for searching the truth is a personal experience. दुनिया में जो I would say maximum invention हुए हैं, they were attributed to personal experience only and only. So let's begin with the Isaac Newton. So when young Isaac Newton was under the apple tree and the apple fell down, he started asking question, what had just happened, why the apple came down, and that led to the concept of gravity, the basic concept that we use in our science and engineering. Okay, similarly, Archimedes, when he got into the bathtub, he observed that the volume of water coming out of that bathtub was more than the weight of his body. So he became curious, and that led to the establishment of Archimedes principle. और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये था कि बिफोर आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो समुद्र में जो नैयाएं चलती थी वो लकड़ी की होती थी. आफ्टर आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाज डिस्कवर्ड, द metal ship started to float on the ocean surface. Why? Because when you see a gigantic ship standing in the middle of the ocean, you must have an idea in your mind that this ship must be displaying more water than her weight. That's why she's standing in that particular body of water. So, be it a Marie Curie, Pierre Curie, number of inventions और जो खोज हुई वो केवल और केवल पर्सनल एक्सपीरियंस से ही हुई. Okay. The fourth is important for all of us. There are 2 points. There is one deductive reasoning and inductive reasoning, which we will cover today in detail. So, while conducting even a PhD research, we typically tend to go for either deductive or either inductive method of conducting a research. हम जिसको डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे. और आज के तारीख में whatever research we are conducting, it is construed as a scientific inquiry. Today, research is not only what you call a loose term, but it is a scientific inquiry. Now, why it is called scientific inquiry? Is it only related to science? No, it is called scientific inquiry because the process by which that inquiry is conducted, that process is scientific.
म्हणजे मराठीमध्ये शास्त्र शुद्ध पद्धत. So that process is scientific. So we will also learn that process. What is that process? आपको 70-80% वो मालूम already है, right? So we go further. Now, many of the research scholars during the tenure of your 5 years, you will come across number of problems, issues, obstacle. कभी आपको लगेगा मेरा काम सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, ये नेचुरल है, ये होना ऑब्वियस है. However, one of the qualities that you require to be a successful researcher is imagination. If you can imagine, then according to Einstein, is the highest form of research. I'm not saying it is based on the outcome, but after imagination, if you can work on it and deliver something, it will be the highest form of research. I always share one of the examples which we encountered while doing our MBA in Europe. We had a faculty from Cambridge, and one fine day that faculty came to the class and he said that today he want to know what are the dreams of students. तो हमने बोला कि ये फैकल्टी को क्या हो गया, जिसको पढ़ाने का मूड नहीं है, हमारे ख्वाब क्यों जानना चाहता है. So since he was a very strict faculty, all candidates, all students started to share a dream, what they want. So there was this young little girl from China sitting in our class. जब उसका नंबर आया तो उसने खड़े होके बताया कि her dream or her imagination is that whenever there is an accident of an aircraft, अगर हवा में होते हुए अगर हवाई जहाज में कुछ भी हो जाता है, the entire aircraft comes down crashing. So she said her imagination is that if such problem is developed in certain part of the aircraft, then that part of the aircraft should be detached and the remaining part also should be detached, and all the parts should come to the ground with the help of parachute. That will help to save the lives of people. So हमको लगा कि शायद ये बहुत अनबिलीवेबल ड्रीम है, अनइमेजिनेबल उसका ख्वाब था, but I think 5 or 10 years ago, probably 10 years ago, 2012 or 2013, one Canadian company took a patent on this. She's living in Canada, और अभी उसके कंपनी ने ये डिजाइन पे पेटेंट लिया हुआ है. तो आई एम श्योर someday we will have an aircraft. अगर हमारे प्लेन में कॉकपिट में फायर हो जाती है तो प्लेन के 3-4 टुकड़े हो जाएंगे और पैराशूट से सेफली प्लेन लैंड होगा. सो इमेजिनेशन इज अ मस्ट. आप जिस भी टॉपिक पे काम कर रहे हो, कोई भी टॉपिक हो, you have to have that power of imagination to imagine what can happen in my field, what something new I can give, what something drastically different I can give, or what something totally out of this world I can share. So it could be both positive or negative. So imagination is required. Now, nature of research. हमारे एग्जाम के एंगल से ये इंपॉर्टेंट होगा. तो जैसे मैंने पहले दूसरे स्लाइड पे बोला था, सिस्टमैटिक. सो सिस्टमैटिक मीन्स टू प्लान. बिफोर you embark upon the road of your research, you must plan what you are exactly trying to do. You must identify. We know that the identification is linked to our statement of problem, क्योंकि उसी को हमें आइडेंटिफाई करना है. So whatever you design or develop, that should be along the periphery of your statement of problem. Nothing more, nothing less. Third, design. जैसे मैंने पहले बोला था कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को या इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप किस तरह हल करना चाहते हो, और वो हल करने के लिए आप कौन सी रिसर्च मेथड
इम्प्लीमेंट या डिप्लॉय करने वाले हो उसका डिजाइन आपको करना अनिवार्य है। कई कैंडिडेट मैंने देखा है, हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी में चैप्टर 3 होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, मुझे नहीं मालूम नागपुर यूनिवर्सिटी में वो चैप्टर मैंडेटरी है क्या, बट वो चैप्टर डालना एक आपके रिसर्च को एक पहलू देता है कि अगर मैं इवेल्युएटर हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कौन सी रिसर्च मेथड और कौन सा रिसर्च डिजाइन इंप्लीमेंट किया है, तो मुझे एक फेयर आइडिया आएगा which I can correlate to your sample size, your finding, your statistical relationship, so on and so forth. Because one design can affect many things. Okay? Then collection of data, जिसके बारे में थोड़ा आगे चल के मैं बात करूंगा, and evaluation of all the information that you have gathered. तो इसको हम कहते हैं systematic. All the 5 parameters under systematic must be reflected in your thesis. Logical, examine the procedure to evaluate the conclusion. अब जो लोग साइंस में काम करते हैं, लेबोरेटरी में काम करते हैं, फॉर देम इट इज वेरी इजी बिकॉज दे आर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, दे आर कमिंग अक्रॉस नंबर ऑफ वेरिएबल्स, टेम्परेचर है, प्रेशर है, जो भी होगा, एंड देन दे इवेल्युएट द कंक्लूजन, सो इट बिकम्स रादर इजी। Whereas जो नॉन साइंस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, for them it becomes a little bit tedious. I'm not saying very difficult, it becomes tedious. Tedious meaning that for a qualitative research, the ability to judge becomes very, very critical, right? Say if there is something and 10 people come and judge that particular thing, I will get at least 5, 6, 7, 8 different judgment. So judgment can vary from person to person. Hence, in a non-science research, the logical argument has to be more stronger on the judgment side. Are you getting me what I'm saying? On the judgment side. स्पेशली ये जो हिस्ट्री के लोग होते हैं, लिटरेचर के लोग होते हैं, आर्ट के लोग होते हैं, वहां पे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट लगती है. वन सच थीसिस व्हिच आई केम अक्रॉस कपल ऑफ इयर्स अगो, दलित पॅन्थर चळवळ, व चर्चा केल्यावर त्याला मी बरेच सारे लॉजिकल आर्ग्युमेंट त्याला टाकायला सांगितले की चळवळ कशी सुरू झाली, त्याची गरज काय होती, मग ती चळवळ कशी वर गेली, मग ती कशी खाली आली, मग आता ती चळवळ कुठे संपली, का संपली, त्याला काही पर्याय मिळालेत का. एन नंबर ऑफ आर्ग्युमेंट्स कॅन बी बिल्ट अराउंड. तो स्पेशली हिस्ट्री आर्ट्स लिटरेचर, इन लोगों को लॉजिकल डालना जरूरी है. फिर आता है आपका मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, उनको भी उतना ही जरूरी है, राइट. द इजियर पार्ट इज ऑन दी साइंस. थर्ड वन इज एम्पिरिकल, where we based our decision on the data that we observe, right? So again, it can be applicable to both science as well as non-science field. फिर आता है आपका रिडक्टिव. नाउ रिडक्टिव में क्या होता है, हम जो भी डेटा गैदर करते हैं, be it from the experiment or be it from the questionnaire conducted in the field, we try to establish data in such a way that we are looking for certain kind of relationship. So if we could establish relationship, general relationship from the data, it becomes a reductive type of research. होता है. Now, कई बार कैंडिडेट अननोइंगली, जिसको ऑनेस्ट मिस्टेक कहते हैं, वो ऑनेस्ट मिस्टेक होती है, उसके समझ में नहीं आता, या उसका गाइड या उसका जो भी कलीग है वो पिन पॉइंट कर नहीं पाता, राइट. सो हियर इज सच एन एग्जांपल. देयर वाज अ कैंडिडेट कंडक्टिंग रिसर्च ऑन इकोनॉमिक्स, और ये उसके वाइवा के दिन ये सामने आया मैटर, जो थोड़ा अलर्टिंग था. हुआ कुछ नहीं, बट एटलीस्ट वाइवा के दिन जब ये मैटर सामने आता है तो मैटर जरा टेंस हो जाता है थोड़ी देर के लिए. तो
वो इकोनॉमिक्स टॉपिक पे उसका थीसिस था। तो उसने एक आर्गुमेंट डाला था कि राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम लीड्स टू इंक्रीज शुगर कंजम्पशन। अभी जो लोगों के घर में जो शुगर कंजम्पशन का पैटर्न बढ़ रहा है, लोगों के फ्रिज में, लोगों के अलमारियों में जो मीठी चीजें खाई जाती है, दैट इज नथिंग बट एफ्लुएंस। शुगर is not essential, it is not must, it is required, but over consumption reflect the affluence। आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हो या बहुत ज्यादा मिठाई खाते हो तो आप affluent हो। So he said that rise in disposable income leads to the affluence, leads to the increase in weight, and the increase in rise in disposable income leads to the increased sugar consumption, and increased sugar consumption leads to the increased weight। तो ये उसने दो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की थी, ए लीड्स टू बी एंड बी लीड्स टू सी। अब जब कंक्लूजन के चैप्टर में उसने ये डाला ए लीड्स टू बी लीड्स टू सी, देयरफॉर ए लीड्स टू सी, मतलब राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम लीड्स टू इंक्रीजिंग वेट। अब वो एग्जामिनर ने सवाल उठाया कि अगर कोई बहुत अमीर है तो वो मोटा होना जरूरी नहीं है। तो वो एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी। तो जब भी आप रिडक्टिव नेचर देखते हो, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस अबाउट व्हाट यू आर इंटरप्रिटिंग। इसलिए मैंने बोला जजमेंटल जो एक एस्पेक्ट होता है ना रिसर्च का, वो जजमेंटल एस्पेक्ट पे कैंडिडेट को अलर्ट होना बहुत जरूरी होता है, राइट। जैसे अगेन टेक एग्जांपल ऑफ कोविड, जो लास्ट ईयर का वेव आया था उसके जो सिम्टम थे वो इस बार थोड़े अलग सिम्टम है। दिस टाइम द सिम्टम इज अ डायरिया, स्टमक एक, वोमिटिंग, नोशिया, ये एडेड सिम्टम अभी आए हुए हैं। सो नेचुरली जब भी ये डेटा एनालाइज करके आप कोई भी चीज को एस्टेब्लिश करते हो रिलेशनशिप के एंगल से, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हाइल पासिंग ऑन अ जजमेंट। चुकीची जजमेंट पास केला तर लोक हसतील तुम्हाला, बाकी काही होणार नाही, पण ती शक्यतो वायवाच्या दिवशी ती जजमेंट दिसली नाही पाहिजे कोणाला। आणि मग लास्ट वन इज अ रिप्लिकेबल वेअर actions are recorded. So it could be in the laboratory setup, or it could be somebody studying the animal behavior, okay, or it could be also in the open field work when a social science student is conducting certain kind of research work. So that is replicable. Clear? Systematic, logical, empirical, reductive and replicable. आगे चलूं? Okay. So now coming to the interesting part, I wanted to share with you this particular aspect. अब मैं जब जजमेंट की बात करता हूँ ना बार बार, the passing on a judgment is very easy, but quantifying that judgment becomes a very difficult task. Okay, so in 2018, a study was published in the Journal of Nature Communication, यूके में वो एक स्टडी पब्लिश किया उन लोगों ने। वो स्टडी को ये पता चला कि नीडिंग टू वेयर ग्लास इज एसोसिएटेड विद हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब उन्होंने ये ऐलान कर दिया जो चश्मा लगाते हैं या जिनको चश्मा लगाने की गरज है उनका इंटेलिजेंस हायर है। नाउ इट इज इटसेल्फ अ कॉन्ट्राडिक्टरी और कंट्रोवर्शियल आर्गुमेंट, बट आगे देखो क्या हुआ इसमें। व्हाट दे डिड, इट वाज कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, ओके, एंड दे कलेक्टेड और दे रादर एनालाइज कॉग्निटिव and genetic data from over 300,000 people between the age of 16 to 102। उन्होंने 3 लाख लोगों का सैंपल लिया
16 साल से 102 साल तक और उनका कॉग्निटिव और जेनेटिक डेटा एनालाइज किया। एनालिसिस में उनको ये पता चला देयर इज अ सिग्निफिकेंट ओवरलैप बिटवीन जनरल कॉग्निटिव फंक्शन, रिएक्शन टाइम एंड मेनी हेल्थ वेरिएबल इंक्लूडिंग आईसाइट, हाइपरटेंशन एंड लॉन्जिट्यूडिटी। मतलब ये 3 लाख सैंपल में significant overlap था। Now again they found something, specifically people who were more intelligent were almost 30% more likely to have genes which might indicate they need to wear the glasses. So इंटेलिजन्स हा कुठून येतो साहेब? हा जीन्स मधनं येतो। हा एक थॉट प्रोसेस आहे बरं का विज्ञानातला। एपीजे कलामांचे आई वडील खूप अत्यंत हुशार नव्हते, पण एपीजे कलामांचे पुढचे बहुतेक हुशार असू शकतील। ज्या जीन्स असतात ना, आपण इंटेलिजन्स बद्दल बोलतोय, तो त्या जीन्स त्या पास ऑन होतात। तर यांना असं कळलं की 30% तुमचा जो इंटेलिजन्स आहे तो तुमच्या जीन मधनं येतो आणि बिकॉज ऑफ जीन तुमची आयसाइट पुअर राहू शकते आणि तुम्हाला चष्मा लावला। आर यू गेटिंग मी व्हॉट आय एम सेइंग? Gene is a cause of your poor eyesight and gene is also a cause of your intelligence. So you have to wear the glasses. Now, while being more intelligent may be linked to poor eyesight, it is also connected with lot of positive health benefit. So if somebody is a very intelligent, then we can safely say he is wearing eyeglasses because he have poor eyesight, but it also have other positive health benefit. Researchers found a negative correlation between cognitive function and number of health problems including angina, lung cancer and depression. So researchers they found that कि cognitive function जो होता है उसका और ये बीमारियों का कोई रिलेशन नहीं है, रादर इट इज अ निगेटिव। कॉग्निटिव फंक्शन तुमचं इंटेलिजन्स डिपिक्ट करतो। सो इफ यू आर इंटेलिजेंट दैट डजंट मीन यू विल हैव कैंसर, डिप्रेशन, नो। निगेटिव कोरिलेशन पता चला। एज ए रिसर्चर वी हैव टू रिमेंबर दैट these are simply the correlation and not conclusive link। आप सभी लोग जो आगे चल के भी रिसर्च के फील्ड में काम करने वाले हैं, एक चीज परमानेंटली ध्यान में रखिएगा, कोरिलेशन से कंक्लूसिव लिंक्स कभी भी नहीं हो सकते हैं। हम कोरिलेशन को कैसे मेजर करते हैं? कैन समबडी टेल मी हाउ डू वी मेजर कोरिलेशन? Statistical significance. काय असते त्याची व्हॅल्यू? व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ कोरिलेशन? कितनी होनी चाहिए कोरिलेशन की वैल्यू? -1 to 1. -1 to +1। वेरी गुड। +1 ये कोरिलेट ये किसने ढूंढ के निकाला था? Who was a person who invented this? पियर्सन हा पियर्सन। त्याचं पहिलं नाव काय होतं? हो पियर्सन बरोबर आहे, ते आडनाव आहे त्याचं। पहिलं नाव कार्ल पियर्सन। हम आपने अगर एमबीए किया होगा नागपुर अमरावती यूनिवर्सिटी से तो अपने को स्टैटिस्टिक्स रहता है सेकंड सेमेस्टर में। ये आपने नहीं किया होगा तो आपको जान के रखना चाहिए कि जो भी हम कोरिलेशन इस्तेमाल करते हैं उसका जनक था कार्ल पियर्सन। इसलिए हम कार्ल पियर्सन सीओसी बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नाउ अब एज ए रिसर्चर आपके मन में दुविधा आएगी, अरे सर हम तो डेटा पैरामीटर जो होते हैं हमारे उसका हम स्ट्रेंथ ऑफ वेरिएबल देख के हम सीओसी निकालते हैं और उसके ऊपर हम हाइपोथेसिस एक्सेप्ट रिजेक्ट करते हैं। दैट इज परफेक्टली फाइन। एज फार एज योर पीएचडी रिसर्च इज कंसर्न, यू आर perfectly all right to pass such a judgment or interpretation based on the test which you have conducted
using the correlation. But can I say with 100% confidence that it is conclusive? The answer is no. No. आता याचं एक तुम्हाला सोपं उदाहरण सांगतो. अलाउ मी टू स्पीक लिटिल बिट मराठी. मी लग्न केलेलं नाहीये, मी अजूनही ब्रह्मचारी आहे. पण तुमच्यापैकी ज्या लोकांनी सुखीनी किंवा आनंदाने लग्न केलं असेल, तर लग्नाच्या आधी पत्रिका जुळवल्या जातात आणि पत्रिकेतले गुण बघतात. काय 35-36 किती असतात आय डोंट नो. आणि जितके जास्ती गुण मिळतील तितका तुमचा काउंटर पार्ट हा चांगला राहील. एक थॉट प्रोसेस आहे. सो समजा तुमचे आणि तुमच्या नवऱ्याचे 35 पैकी 32 गुण मॅच झाले, तर तुमचं लग्न झालं. आणि लग्नाच्या 10 वर्षानंतर जर मी तुम्हाला विचारलं, अहो संसार कसा चालू आहे, तर तुमचं उत्तर राहील, जैसा सबका चल रहा है वैसा हमारा भी चल रहा है. So as a researcher, the question here is that what that 32 good out of 35 elaborate? It is only a correlation, not conclusive link. The same logic applicable to the मांगलिक also. अगर आपने वैसे बहुत कम लोग होते हैं जो डेरिंगबाज होते हैं, जो मांगलिक लड़का या लड़की से शादी करेंगे. यूजुअली मांगलिक का ही टाका भिड़ाया जाता है. पर ये क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली दिस, की अगर लड़के या लड़की के पत्रिका में मंगल होगा तो वो शादी सक्सेसफुल नहीं होगी. ये कोई इंपिरिकल डेटा का एक उनका ऑब्जर्वेशन होगा. और वो सदियों से वो चलते आ रहा है, जिसको हम कोरिलेशन बोलेंगे. कि मान लो 10 मांगलिक लड़कों ने नॉन मांगलिक से शादी की, तो हो सकता है 10 में से 6-7 लोगों की शादी में प्रॉब्लम आएंगे. तो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ये रीति हमारे यहाँ चलती आई है. बट कैन यू प्रूव इट साइंटिफिकली सर? इसका कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन है क्या? द आंसर इज नो. It is not conclusive. So, dear friends, while conducting research, even for your PhD and going forward, one has to be extra cautious of how you are interpreting the correlation. हाँ, मैं अगर पीटी मॅडम को बोलता हूँ की मॅडम चला चहा प्यायला जाऊ, मॅडमलाही चहा आवडतो, मलाही आवडतो. आम्हाला एका प्रकारची गाणी आवडतात, एका प्रकारचं खाणं आवडतं. सो वी हॅव अ पॉझिटिव्ह कोरिलेशन. पण काही वर्षांतर आमच्या आवडीनिवडी बदलल्यात, तर कोरिलेशन कॅन बिकम निगेटिव्ह ऑल्सो और irrelevant also, or what we call it as a neutral. There is no correlation. So as the correlation between the variable changes from time to time, hence we can't say with higher level of confidence that it is a conclusive link. Got it? हा रिसर्च मधला खूप डेलिकेट आणि अत्यंत महत्वाचा कन्सेप्ट आहे. आपण कोरिलेशन काय हो, कोरिलेशन एक टूल आहे, स्टॅटिस्टिकल टूल आहे. ते इंडिकेटर आहे, व्हॅल्यू आहे ती +1 to -1 ची. आणि आपण आपल्या डेटाला त्या संदर्भात बघून आपण सांगतो की आपले जे ऑब्झर्वेशन आलेले आहेत ते +1 मध्ये येतात की -1 मध्ये येतात. ते जर 0.6च्या पुढे असतील तर आपण म्हणू की स्ट्रॉंग पॉझिटिव्ह कोरिलेशन आहे. आपण त्याला फक्त इंटरप्रिट करतो. इट इज नथिंग but interpretation of what we see. It is not conclusive link. Mind that well and remember it for the rest of the life. म्हणून हा जो काही प्रकार या केम्ब्रिज एडिनबरा विद्यापीठाने केला, इट इज करेक्ट. बट यू कैन से विथ 100% कॉन्फिडेंस लेवल दैट कि हाँ यही सच है, यही सत्य है ना. ये एक कोरिलेशन. अगर यही डेटा हम लेके नागपुर में करते हैं या मणिपुर में करते हैं या अरुणाचल में करते हैं, फाइंडिंग माइट बी डिफरेंट. हेंस एज आई सेड एट द बिगिनिंग कि क्वालिटेटिव रिसर्च में जजमेंट पास करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है. और कैंडिडेट ने इंटरप्रिटेशन में भलता ही जजमेंट लिखा और गलती से वो एग्जामिनर को लगा कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये डजंट मेक लेजिटिमेट सेंस, तो वहां डिबेट हो सकता है अगर होना है तो. ये मैंने 1-2 केस में देखा है. So coming back to this, so it is worth to note that what constitutes intelligence is subjective and can be difficult, if not impossible to measure. मी म्हटलं
की तुकाराम इंटेलिजंट आहे. म्हणजे काय? व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ माय इंटेलिजंट? म्हणजे ते 1+1 सांगू शकतात, ते 573 मल्टिप्लाइड बाय 2007 सांगू शकतात, म्हणजे ते इंटेलिजन्स का? नाही. इंटेलिजन्सची व्याख्या ही अत्यंत ब्रॉड आहे. सो इफ आय हॅव टू क्वांटिफाय द इंटेलिजन्स, ओके, इट विल बी व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. आत्ताच्या जमान्यामध्ये तुम्ही सगळे काय करतात, तुमच्या पोराबाळांचे IQ वगैरे काढतात. खूप सारे दुकानं आलेले आहेत, तिथे तुमच्या 10-12 वर्षाच्या मुला मुलींना घेऊन जायचं, काहीतरी तो कम्प्युटर टेस्ट देतो आणि मग तो तुमच्याकडनं 400-500 रुपये घेऊन त्याचा प्रिंटआउट सांगतो. तो म्हणतो तुमच्या मुलाचा IQ इतका आहे, त्यांनी इंजिनिअरिंग करावं, नाही तर आर्ट्स करावं, नाही तर फलाना करावं, हे करिअर गायडन्स. अरे ये हो ही नहीं सकता सर, हो ही नहीं सकता. ये सायंटिफिकली व्हेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रिट. इवन IQ, द वे माझ्या फोनमध्ये बऱ्याच ऍप आहेत IQच्या, मी खेळतो त्या ऍप, बिकॉज आय एम ऑल्सो काइंड ऑफ फॅसिनेटेड बाय की IQ हा कसा काय डेव्हलप केला गेला, व्हॉट इज अ इंटेलिजन्स क्वेश्चन. आणि त्याच ऍप IQ का सांगू शकतील, दुसऱ्या ऍप माझा IQ का नाही सांगू शकणार. सो इट्स अ व्हेरी फ्लुइड subject, but it is not impossible. It can still be measured. So it has to be quantitative. So again, coming to this particular study, there are plenty of empirical evidence that wearing glasses, whether you need or you do not need, make people think you are more intelligent. And number of studies have found that people who wear glasses are perceived as smart, डिपेंडेबल, इंडस्ट्रियस अँड ऑनेस्ट. हे लोकांचे जगामध्ये परसेप्शन आहेत. तर याला आपण जेव्हा संशोधनाच्या अँगलनी बघू, तर तुमच्यातला संशोधक हे सगळे प्रश्न डेफिनेटली त्याला विचारता आले पाहिजे की हे काय आहे. आपण परसेप्शन, बऱ्याच परसेप्शनवर आपण जगतो, बट वी हॅव टू नो दी सायन्स बिहाइंड दॅट परसेप्शन अँड क्वांटिफिकेशन रिलेटेड टू दैट परसेप्शन. इफ यू कैन, देन यू आर अ जेन्यून रिसर्चर. और यहाँ अगर कोई साइंस के लोग होंगे, उनके लिए मैंने 3-4 साइट डाला है स्पेसिफिकली IT और कंप्यूटर के लिए. द रीजन आई हैव पुट दीज इनपुट्स बिकॉज when it comes to the technology, it is highly dynamic. It can go in and out of the flavor very very quickly, unlike farmer suicide. मान लो 2050 में हिंदुस्तान का आदमी चांद पे भी चला गया और तब भी अगर फार्मर सुसाइड हो रही है, तो वो टॉपिक तब भी व्हॅलिड रहेगा. जैसे हुंडाबळी ही एक मोठी समस्या होती आपल्या विदर्भात 70 आणि 80च्या दशकात, टू सर्टन एक्सटेंट 90च्याही दशकात. आता ती इरिलेव्हंट नाही आहे, पण कमी रिलेव्हंट आहे. आता मी टू, सेक्सुअल हरासमेंट, ये चीजें ज्यादा रिलेवेंट हो गई है. तो सोशल साइंस में जो चेंजेस आते वो तुम्हारा मेटा स्पीयर देख के आते हैं. अमेरिका एक अलग सोसायटी है, उनके प्रॉब्लेम अलग है. विदर्भ एक वेगळा आहे, कोकणाचे वेगळे आहेत, मराठवाड्याचे वेगळे आहेत, पश्चिम महाराष्ट्रातले वेगळे आहेत. पण वेन इट कम्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो यूनिफॉर्म है वर्ल्ड वाइड, इट इज हाईली डायनेमिक. सो आप देखिएगा, अगर कंप्यूटर साइंस के कोई लोग हो गए, तो 2007 और 8 में लॉट ऑफ द टॉपिक्स वेर पीक्ड. ये जो भी है कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब पीक हुए. अब रिसर्च कहीं और जा रहा है. Having said that, although they are peaked, certain areas are almost on the verge of disappearing. ये हार्डवेयर जो नीचे का ब्लू है ना, अब हार्डवेयर में बहुत कम गुंजाइश बची है रिसर्च की. ये जो ग्रीन जो है, जो नैरो हो गया है, मैथमेटिक्स ऑफ कंप्यूटिंग, अगेन आई एम नॉट सेइंग इट इज बिकमिंग इरिलेवेंट, ये आउट ऑफ द टेस्ट, इसका फैशन बदल गया है. बट एरियाज विच आर स्टिल इंटैक्ट टुडे, ये कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी, ये डार्क ग्रीन वाला आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट, ये लाइट ब्लू का जो है आपका सॉफ्टवेयर, ये अभी भी है, अलग एंगल में चले. ये ACM का फ्रीक्वेंसी का डेटा, इतने रिसर्चेस हो रहे हैं. सिमिलरली अगर IEEE का भी आप देखोगे, अगेन algorithm is dominant, okay, information science is dominant, information retrieval is dominant, database management is dominant, computer architecture is dominant. तो टॉपिक सिलेक्ट करते समय जैसे अपन ने बोला था कि वो रिलीवेंट होना चाहिए, मैं आगे भी चल के आपको बताऊंगा. स्पेशली साइंस के लोगों को
रिलीवेंट फील्ड में काम करना है। अगेन कोई भी साइंस के सब्जेक्ट से अगर आप रिसर्च कर रहे होगे तो उसका एक नेटवर्क डायग्राम आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। देयर आर नॉट्स ऑफ, ये IEEE के वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है। से जब 1995 में विंडो 95 आया था तो लॉट ऑफ रिसर्च वाज डन रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, और उसका जो नेटवर्क या जिसको हम क्लस्टर बोलते हैं इज अ डार्क लाइन, मींस नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिसर्च वेयर कंडक्टेड रिलेटेड टू दी टू कंसेप्ट ज्वाइनिंग टुगेदर, और लाइट ब्लू जो है वो इंटरफेसेस है। सो सिक्योरिटी का कोलैबोरेशन, सिक्योरिटी का ऑथेंटिकेशन, मोबिलिटी, ऑल दीज थिंग्स द रिसर्च हैज ऑलरेडी बीन डन। जब हार्डवेयर में इंप्रूवमेंट्स हुए, मल्टीमीडिया क्लस्टर आया, उसमें भी काफी सारा यूजर इंटरफेस लीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब लीजिए, डिजिटल लाइब्रेरी लीजिए, नंबर ऑफ रिसर्चेस वेर कंडक्टेड। नेटवर्क में भी जब Y2K होने के बाद नए मिलीनियम में हम हर कुछ ई-कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी हो गया, डेटा माइनिंग हो गया, पर्सनलाइजेशन हो गया, यूजेबिलिटी हो गया, एंड देन इंटरनेट आर्किटेक्चर, राउटिंग, सो एंड सो फोर्थ। सो जो भी टॉपिक आप लोगे वो टॉपिक का क्लस्टर आपको आइडेंटिफाई करना है, वो क्लस्टर में कौन से ट्रेंड चल रहे हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है, और उस ट्रेंड पे आपको काम करना है, वेदर इट इज अ सायन्स और नॉन सायन्स। आता आपलं संशोधन कसं असावं? इट हॅज टू बी स्मार्ट, स्पेसिफिक. द मोर स्पेसिफिक इज योर टॉपिक, द इजियर योर वर्क विल बी. आपका टॉपिक अगर बहुत ही व्हाट यू कॉल डिफ्यूज है तो काम करने में दिक्कत आएगी. सेकंड, मेजरेबल. Everything and anything has to be measured, quantifiable, right? आप अगर मेजर नहीं कर रहे हो, हाँ, मैंने बोल दिया गोविंद पागल है, that I could be biased or I am having a grudge against Govind. But as a researcher, if I could set up a framework or a matrix and put in that matrix and measure the attributes of Govind, and at the end of the day I can prove that according to this matrix Govind is pagal, then people will buy my argument. Got it? So measurement or quantification in research is a must. यहाँ पर जितने भी कॉमर्स और मैनेजमेंट के लोग बैठे हैं ना, ध्यान से सुन लो. आजकल मैं जाता नहीं हूँ YY में, बट मैंने ये अक्सर देखा है हमारे कॉमर्स और मैनेजमेंट में बहुत कम क्वांटिफिकेशन होता है, right? So you have to be utmost careful that anyhow you will do the quantification. If not 100%, more than 50% you will do it. नाही तर मग ते बार चार्ट आणि पाय चार्ट काढून सांगतात 30% said yes, 40% said no. मग ते कोणतं संशोधन झालं? तो तर MBA चा तुमचा प्रोजेक्ट झाला किंवा MPhil चा प्रोजेक्ट झाला. आपल्याला आचार्याची पदवी मिळणार आहे ना, त्याच्यामुळे आपलं काम एका लेवलचं असलं पाहिजे. क्वांटिफिकेशन इज अ मस्ट. थर्ड, अचीवेबल. जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि हमको 5 साल का समय दिया जाता है तो हमें 5 साल में अपना काम कंप्लीट करना आना चाहिए. फोर्थ इज अ रिलीवेंट. जो आज के तारीख में रिलीवेंट है वही हमारा टॉपिक होना चाहिए. हैविंग सेड दैट, जरूरी नहीं है कि वो रिलीवेंट ही हो. आपको अगर लगता है कि आपको जाके अलेक्जेंडर द ग्रेट के ऊपर रिसर्च करना है, या लोकमान्य तिलक के ऊपर करना है, या वल्लभ भाई पटेल के ऊपर करना है, आप कर सकते हो हिस्टोरिकल रिसर्च. बट मेजॉरिटी रिसर्च जो होता है साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट में, ये करंट टाइप का रिसर्च. जैसे हमारे मैनेजमेंट में अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, अभी ये मोबाइल पेमेंट का आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी आ रही है. सो ये इवॉल्विंग फील्ड है. तो आवर टॉपिक हैज टू बी रिलेवेंट. यू कांट बाबा आदम के जमाने का टॉपिक लेके मिल जाती है PhD, इट इज नॉट ए इशू. बट अगर रिलेवेंट पे किया तो हम लिटरेचर को आगे बढ़ाने में हमारा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. एंड ही इज अ टाइम बाउंड विच इज लिंक टू योर अचीवेबल. आपका 5 साल के अंदर पूरा काम होके आपको डिलीवर करना है. नहीं तो कई बार देखा गया कि कैंडिडेट एक्सटेंशन लेते हैं और वो नहीं होता. जैसे साकारन था, अगेन जो मोटिवेशन में उसने बोला था कि फाइंडिंग अ सॉल्यूशन आफ्टर मेकिंग अ डीप एनालिसिस.
and conducting the studies of relevant factors, right? So आप जो भी आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी रिलेवेंट फैक्टर है उसका स्टडी करना, और जिस डोमेन में आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है उस डोमेन का इन डेप्थ एनालिसिस करना. Got it? So here again he said that the method that you are utilizing, we have to ensure that whatever information, because after all research is supported by information, it could be primary or it could be secondary, but that information must be supported by reasonably amount of quantitative and qualitative data. इन्फॉर्मेशन म्हणजे नुसती माहिती, पण तुम्हाला दोन्ही क्वालिटेटिव्ह क्वांटिटेटिव्ह डेटा लागेल, आणि that involves a systematic process. What do I mean by that? So say on certain website you get certain data, you don't bother, you simply downloaded that data, you utilize in your thesis and you quoted ये फलाना फलाना इससे हमने लिया है. पर डेटा लेने से पहले आपको देखना है क्या ये जेन्युइन और वैलिड डेटा है, क्या ये वेबसाइट लेजिटिमेट है, क्या इसकी ऑथेंटिसिटी सही है, क्योंकि अगर उसने गलती की है तो आप भी गलती करोगे, आपका डेटा लेके तीसरा आदमी लेगा वो भी गलती करेगा. तो सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है कि इंफॉर्मेशन लेजिटिमेट है क्या, ऑथेंटिक है क्या, जो इंफॉर्मेशन देने वाला ऑथर है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है. कल अगर डॉक्टर अमर्त्य सेन कोई डेटा पब्लिश करते हैं तो ऑफ कोर्स अमर्त्य सेन बीइंग अ नोबेल लॉरेट इट विल कैरी हाई अमाउंट ऑफ क्रेडिबिलिटी. बट अगर कल उद्धव ठाकरे जी अगर कोई डेटा पब्लिश करते हैं, ऑल्दो ही इज अ चीफ मिनिस्टर, definitely his data will be backed by some intelligent people, but then who is more credible when it comes to the research? Naturally it will be Amartya Sen. So what I'm trying to say is that person credible in that field has to be adopted. The information or data has to be adopted from them. Anything other than them will lead to the discrepancy in the authenticity of that particular information. म्हणून ते एलिमिनेट करण्यासाठी आपल्याला शास्त्रशुद्ध पद्धत. देन रिसर्च का मोटिवेशन और एक होता है प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द मेथड, कलेक्टिंग एंड डिस्क्राइबिंग द डेटा एंड रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन. बिकॉज ऍट द एंड तुम्ही जर रिसर्चला बघितलं तर तुम्ही काय करता, एक डिझाईन करता, माहिती गोळा करता, त्या माहितीला डिस्क्राइब करता, आणि जे तुम्ही डिस्क्राइब केलंय त्याला रिपोर्ट करता. ये पूरा इंफॉर्मेशन का ही खेल है ना. तो इसीलिए आपका डिजाइनिंग ऑफ द मेथड बिकम, रिसर्च मेथड बिकम वाइटल टू इट. सो इन अ नटशेल वी आर ट्राइंग टू फाइंड द आंसर्स टू द क्वेश्चन that will resolve the uncertainties of a problem, right? अब जो जनरल साइंटिफिक मेथड बोली गई है उसका मतलब क्या? उसका सिंपल मतलब है डेवलप द प्रॉब्लम, डिफाइन एंड डिलिमिट इट. जो कि हम कोई भी रिसर्च हम एक तय समय सीमा में करते हैं तो हमको उसे डिलिमिट करना पड़ता है. टू डिलिमिट द प्रॉब्लम मीन्स पुटिंग अ लक्ष्मण रेखा अलोंग द बॉर्डर, सो दैट 5 साल में आप इतना काम कर पाओगे, 6 महीने में इतना कर पाओगे, राइट? अगर मैंने आपको 20 साल दिया तो आपके पास टाइम पैसा सब अवेलेबल है, तो उस समय आपको डिलिमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देन फॉर्मूले, हाँ, वंस यू डू दैट यू आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मला सांगा बरं, व्हाट इज डिपेंडेंट एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? क्या होता है? What is dependent and independent variable? So dependent variable get affected by other variables as well. The result of बोलिए. dependent, yeah.
So dependent variable means it is getting impacted by another variable, if at all like we want to take the result of that. But in independent variable, there is no impact of the other variable. Excellent. So it is independent of the outcome, right? So in a simplistic example, let's take a, a, a very simple example of your two-wheeler. Okay. So if I increase the degree of accelerator, say by 10 degree, मैं एक्सीलरेटर को 10 डिग्री से बढ़ाता हूं तो मेरी स्कूटर की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से बढ़ती है. सो द स्पीड ऑफ स्कूटर is dependent on the degree of accelerator. That means accelerator is independent and speed is dependent, right? So हम जब हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जब आइडेंटिफाई करते हैं, डेवलप करते हैं, हमें तुरंत डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है. आप में से कितनों ने किया होगा? आई हैव अ सीरियस डाउट अबाउट इट, बट अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज वंस यू आइडेंटिफाई दैट, देन ओनली यू कैन फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस. अब प्रॉब्लम क्या होता है साहब लोग, मैं आपको ब्लेम बिल्कुल नहीं करेगा, आप लोगों ने भी वो सिनॉप्सिस बनाया होगा और जमा किया होगा, आरआरसी में डिफेंड किया होगा, टाइटल अप्रूव होके आप काम कर रहे हो. बट मेनी अ टाइम वी हैव सीन द कैंडिडेट shows high level of difficulty in formulating the hypothesis. Since he or she is not aware what kind of hypothesis should be formed, the major part of the research comes into a question. मैं उसको डाउट नहीं बोलूंगा, अभी भी आप याद रखिए, हाइपोथेसिस आपको आपके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट या अदर वेरिएबल देख के ही बनाना है. क्यों? क्योंकि हाइपोथेसिस केवल और केवल स्टैटिस्टिकल टूल से ही टेस्ट होने वाले चाहिए. दैट्स इट. अगर आपके 6 हाइपोथेसिस में से अगर आपके 4 स्टैटिस्टिकली टेस्ट हो रहे, आई विल बी हैप्पी. 3 हो रहे, आई विल बी सेटिस्फाइड. 2 हो रहे, एवरेज. और अगर एक ही हो रहा है, एक भी नहीं हो रहा है, तो आपका पीएचडी का पूरा के पूरा थीसिस कोई काम का नहीं है. उसमें आपका ब्लेम नहीं है, क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं था सिनॉप्सिस लिखते समय हाइपोथेसिस कैसे करें. और उसका मैं आपको गुड न्यूज बाद में दूंगा, ये हम कर सकते हैं. चलो अभी बोल देता हूँ. Whatever number of hypotheses you have already put into your synopsis, you have to test all of them. Whether you do it qualitatively, quantitatively, it is up to you. But during the course of your research, if you come across certain kind of relationship, then you are free to add extra hypothesis and test it, thereby improving the quality of your research. You are not allowed to delete any existing hypothesis in your synopsis. Deleting means breaking the rules of PhD सेल्स ऑर्डिनेंस और रूल्स एंड रेगुलेशन. वो हम कर नहीं सकते. आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, जितने भी आपको सिग्निफिकेंट लगते हैं वो हम कर सकते हैं. हाइपोथेसिस के ऊपर भी आपका एक सेशन होगा. हाइपोथेसिस इज नथिंग बट द एंटीसिपेटेड आउटकम. जैसे सेशन के बिगनिंग में मेरा एंटीसिपेशन था कि मैं लॉग इन करूंगा और 10:30 को सेशन चालू होगा. सो 10:15 से मैं ट्राई कर रहा हूँ. तो आउटकम क्या आया? हम 10, 12, 13 मिनट हम लेट हो गए. सो अगेंस्ट दी एंटीसिपेटेड आउटकम, राइट? देन डेटा कलेक्शन. अगेन डेटा इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, चाहे आपने वो प्राइमरी सोर्स से लिया हो, मतलब फील्ड में जाके उसमें भी आपने फोकस ग्रुप लिए, क्वेश्चनर लिए, टेलीफोन इंटरव्यू लिए, ईमेल क्वेश्चनर, एन नंबर ऑफ टूल्स आर देयर टू डू दैट. और आपने सेकेंडरी सोर्स से लिए, आपको दोनों में भी इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी चेक करनी है. जो सेकेंडरी सोर्स का डेटा होगा, मेक श्योर इट इज वैलिड एंड टेकन फ्रॉम द अप्रोप्रिएट सोर्स. आपने जो इंटरनल जो आपने प्राइमरी डेटा लिया है, मेक श्योर वो उसका मैक्सिमम इंटरनल वैलिडिटी है, मतलब जिस तरीके से आपने वो डेटा कलेक्ट किया क्वेश्चनर, तो उसमें भी मैं आगे आपको बताऊंगा
क्या होना चाहिए, चलो अभी बोल देता हूँ. अकॉर्डिंग टू मी, अगेन इट इज नॉट अ रूल, इट इज अ रूल ऑफ थंब. About 27 to 28 questions should be asked in a questionnaire. अभी आप बोलोगे अरे सर आप क्या बता रहे हैं, हम तो 100 क्वेश्चन ले रहे, 200 ले रहे, 300 ले रहे. आपका जो भी हाइपोथेसिस है, आप में से जिन लोगों ने अभी क्वेश्चनेयर नहीं बनाया है, मैं तो सोचता हूँ आपका पूरा रिसर्च ही कंप्लीट किया होगा, क्योंकि अभी आप ये एग्जाम देके अगले 1-2 हफ्ते में आपका थीसिस सबमिट करेंगे. पर अगर जिनका नहीं हुआ है अब तक, थोड़ा सा ध्यान देके आप सुनिए. क्या होता है, मेरा जो हाइपोथेसिस है, मेरा सवाल, मेरा जो क्वेश्चन रहेगा, हाइपोथेसिस से ही रिलेटेड रहेगा. अगर मेरा 5 हाइपोथेसिस है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 सवाल पूछूंगा उसको. एक हाइपोथेसिस के 4 या 5 सवाल, मैक्सिमम 25 सवाल, एंड डन. I don't have to ask any other information from the primary source, right? साइंस वालों के लिए तो और अच्छा है, उनको तो केवल और केवल एक्सपेरिमेंट करना और हाइपोथेसिस टेस्ट करना है. रिसर्च करताना सायन्सचं रिसर्च करणं सगळ्यात सोपं आहे आणि नॉन सायन्सचं सगळ्यात डिफिकल्ट जातं. त्यातल्या त्यात कॉमर्स मॅनेजमेंट एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट जातं, कारण आपण क्वालिटेटिव्ह क्वांटिटेटिव्ह दोन्ही करतो. आणि आपल्याकडे दोन्ही डेटा असतो, इंटरनल आणि म्हणजे प्राइमरी आणि सेकंडरी. सो ध्यान रखिएगा डेटा वैलिडिटी. Then analysis of data, which we use statistical tool to analyze, and interpretation of the result. अब ये एक स्टेप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है, ये मैं कर लेता हूँ. टिपिकली क्या होता है ना, मेरे सेशन में ये खत्म होने के बाद हम ब्रेक लेते हैं, जो कि हमको थोड़ा सा समय में डिले हुआ. आता 12:10 झालेत. मी हे संपवतो एक 5 ते 6 मिनिटात, मग आपण ब्रेक घेऊ. मग म्हणजे नंतर मला तुम्हाला पुढचं कंटिन्यू करता है. मैं पहले सब क्लिक कर लेता हूँ, ये आप सबको मालूम है, बट आई विल जस्ट इलेबोरेट कि हम आगे चल के भी जो भी रिसर्च करेंगे हमारे लाइफ में, वो अगर हम साइंटिफिक स्टेप उसको फॉलो करते हैं, तो उस रिसर्च को हम साइंटिफिक रिसर्च बोलेंगे. इट इज नॉट अबाउट साइंस, बट इट इज अबाउट फॉलोइंग द स्टेप्स विच आर साइंटिफिक इन नेचर. एक मिनट. कलेक्शन, डेटा मैनेजमेंट and interpretation and reporting. Okay, so you start with any area. Okay, it could be social science, it could be engineering, it could be chemical engineering, it could be anything. Then select a topic. You select a particular topic, और वो टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद अपने आप को सवाल पूछिए, जिसको हम क्रूड रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं, कि आप ये टॉपिक में क्या करना चाहते हो. तो आपके मन में एक सवाल आ गया, हाँ मैं ये करना चाहता हूँ. जैसी वो क्रूड सवाल आएगा, आप लिटरेचर में जाइए, लिटरेचर रिव्यू कीजिए, और अगर उसका जवाब आपको मिलता है, तो आपको वो रिसर्च करने की जरूरत नहीं. अगर आपको उसका जवाब नहीं मिलता है लिटरेचर में, तो आप आपके क्वेश्चन को रिफाइन कीजिए, मेक इट मोर रिफाइन. आफ्टर रिफाइनिंग, अगेन गो टू द लिटरेचर. इफ यू फाइंड द आंसर, you don't have to do the study. But if you don't still find the answer, then your research question, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बोलते हैं, वो तैयार हो गया. फिर आप इमीडिएटली हाइपोथेसिस, गोल एंड ऑब्जेक्टिव बनाइए. जो लोग आगे रिसर्च करने वाले हैं, वो कृपा करके एक चीज ध्यान में रखिएगा. टाइटल ऑफ योर रिसर्च is equal to statement of problem, is equal to aim, is equal to objective, is equal to hypothesis. या पाचही गोष्टी एका समांतर लाईनीत आल्या पाहिजेत, समांतर लाईनीत आल्या पाहिजेत. बरेचदा तुमचा गाईड तुम्हाला किती मार्गदर्शन करतो, तुमचे मित्र किती मार्गदर्शन करतात, किंवा तुम्ही किती मोटिवेटेड आहात की मला या पद्धतीने, चुका होतात, कमी जास्त होईल, पण शक्यतो टाइटल ऑफ युअर थीसिस इज इक्वल टू एम, इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव, इज इक्वल टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, इज इक्वल टू हाइपोथेसिस. ये 5 चीजें याद रखने का, ये एक ही होनी चाहिए. वो बनने के बाद आपको आपका स्टडी का डिजाइन करना है. हाउ यू आर गोइंग टू कंडक्ट योर स्टडी. उसमें जो लोग बॉटनी, जूलॉजी, फार्माकोलॉजी वाले जो लोग हैं,
उनको इथिकल इश्यूज के ऊपर ध्यान देना है कि वो किसी झाड़ को मारेंगे, पंछी को मारेंगे, कीड़े को मारेंगे, जानवर को मारेंगे या इंसानों के ऊपर टेस्ट करोगे. देर आर नंबर ऑफ इथिकल इश्यू जो हम कल डिस्कस भी करेंगे. सो वंस दे सॉर्ट आउट द इथिकल इशू एंड द डिजाइन इज प्रिपेयर्ड, गो फॉर द पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग कि मैं कितना सैंपल लूंगा. अभी अक्सर जो मैंने देखा है, हमारे कॉमर्स मैनेजमेंट के लोग, कोई 1000 का सैंपल लेता है, कोई 1500 लेता है, कोई 200 लेता है, कोई 250 लेता है. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर प्रॉब्लम, ओके, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, you can decide upon what kind of sample you have to take. रूल ऑफ थंब जो है, हाँ, रूल ऑफ थंब जो मैं फॉलो करता हूँ, साधारण 888 पासून 1200 पर्यंत सॅम्पल घेतला पाहिजे जर तुमचा जनरल टॉपिक असेल तर. पण जर तुमचा टॉपिक खूप स्पेसिफिक असेल, जैसे एक लड़की थी जिसको नागपुर डिस्ट्रिक्ट के ल्यूकेमिया के चाइल्ड पेशेंट के ऊपर वो रिसर्च कर रही थी, 2 साल पहले आई थी अपने एकेडमिक में. तो वो उसको उसका डेटा जो मिला, उसको जितने भी चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल है उसमें आने वाले जितने मिले, मैंने कहा 100% पॉप्युलेशन को कव्हर करेगी. जसं मी एकदा नागपूर शहरातल्या गवळ्यांचा अभ्यास केला होता. गवळी म्हणजे ज्याच्याकडे शासनाच्या व्याख्याप्रमाणे की जातही आहे, जमातही आहे, ज्याच्याकडे 2 किंवा 2 पेक्षा जास्ती दुधाळू जनावर आहे, तो स्वतः दूध काढतो, स्वतः विकतो, तो गवळी. आम्हाला हार्डली 78 लोग ऐसे मिले, 78 परिवार, 100% सैंपल लिया हमने. सो पॉपुलेशन सैंपलिंग में आपको एक चीज याद रखने का है, आपका पॉपुलेशन होता है P और सैंपल होता है N. हायर द N एंड वेरी क्लोज टू द P, हायर विल बी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. But if P is very large and N is very small, level of confidence will be very low. मैंने अगर आज आपको पूछा 40 लोगों को, का तुम्हाला नरेंद्र मोदी आवडतो का, आणि तुम्ही सगळ्यांनी म्हटलं हो आवडतो, तर मी रात्री जाऊन पेपर पब्लिश केला आणि सांगितलं की इंडिया लव्स नरेंद्र मोदी, दॅट विल बी रॉंग. I can't ask 38 person and make an interpretation for 1.3 billion people. But if I ask all 1.3 billion people and then they say then it is a valid argument. त्याच्यामुळे सॅम्पल घेताना तुमचं पॉप्युलेशन किती आहे आणि तुम्ही किती टक्के सॅम्पल घेताय ते. आता मी वर्ल्ड बँक आणि महाराष्ट्र शासनाकरता कामं करतो. आम्हाला स्पष्टपणे वर्ल्ड बँकेचे जे नियम आहेत ते मी तुम्हाला सांगतो, 5% आम्हाला सॅम्पल घ्यावं लागतं. तो उद्या मला नागपूर शहरात जो अभ्यास करायचा असेल तर 26 लाख मल्टिप्लाइड बाय 5% तेवढं सॅम्पल घेणं हे अनिवार्य आहे. पण त्याच्याकरता आम्हाला वेळ आणि पैसा मिळतो, तो भाग वेगळा आहे. तुमच्या PhDच्या थीसिस मध्ये तुम्ही घेतलेलं पॉप्युलेशन एंड सैंपल जो एग्जामिनरनी विचारलं, बेटा सैंपल कितना लिया, उतना ही क्यों लिया, आपको जस्टिफाई करना आना मांगता है. कोई भी हवा से लेके कोई सैंपल नहीं निकालेगा. त्याच्यामुळे जिन लोगों का हो चुका है वो जस्टिफाई कैसे करना वो सोचो, जिनका होना है वो कितना. कारण तुम्हाला साहेब 60 महिन्याचा वेळ दिलाय ना, 60 महिन्यात खूप काही तुम्ही करू शकता. सो सॅम्पल हॅज टू बी जस्टिफाईड. बी केअरफुल. त्याच्यावरही तुमचं एखादं लेक्चर होईल सॅम्पलिंगवर. देन यू हॅव टू आइडेंटिफाई दी वेरिएबल्स, राइट, एंड सिलेक्ट दी रिसर्च टूल. अब क्या होता है, यहाँ पे आता है रिसर्चर का बायस्ड. वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हम सोचते हैं कि मैंने जो किया अरे सही है ना यार, अरे चल यार ऐसे नहीं, ये होता है, नथिंग रॉन्ग विद दैट. इवन नोबेल लॉरेट भी बायस्ड होते. बट अगर मुझे एक रैशनल स्टडी करना है, तो मैं मेरा मिनिमम, हाँ चलो आप वेरिएबल में बायस डालो, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, बट रिसर्च टूल के समय आपका बायस मिनिमम होना चाहिए. आप पूछिए क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल आपने चूज किए, चलो ये बायस थे, मान लिया है बायस थे, आपका जो हाइपोथेसिस था उससे रिलेटेड ये वेरिएबल हो गए. तो आपके टूल जो होंगे वो ऐसे होने चाहिए ताकि वो ये वेरिएबल को टेस्ट करे और आपके हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट रिजेक्ट करे. इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ की तुमच्या रिसर्च टूल मध्ये बायस नको. मग आता रिसर्च टूल म्हणजे काय? तुम्ही प्रश्नावली घ्याल का, फोकस ग्रुप डिस्कशन घ्याल का,
सायन्सचा एक्सपेरिमेंट करताय तर किती व्हेरिएबल मेजर कराल, कशा पद्धतीने मेजर कराल, कोणते इक्विपमेंट वापराल, ऑल दीज आर दी टूल्स. ओके, सो डोंट बी बायस्ड अबाउट इट. वो होने के बाद एक पायलट स्टडी करके देखने का, 5, 10, 15 क्वेश्चनर भर के देखने का, या एक्सपेरिमेंट करके देखने का. अगर आप साइंस के लोग हैं, क्या मिल रहा है मेरे को, बैठने का, ध्यान से देखने का, ये जो जानकारी या डेटा मुझे मिल रहा है, क्या उससे मैं मेरे वेरिएबल और हाइपोथेसिस टेस्ट कर पाऊंगा या नहीं. अगर जवाब हाँ है तो आप वर्क प्लान बनाइए कि मैं 1000 क्वेश्चनर कैसे भरूंगा, कितने दिनों में भरूंगा. अगर आपको स्टूडेंट की हेल्प लेनी है तो आप उनको ट्रेनिंग दीजिएगा, उनका टीएडी अगर आप दे सकते हो दीजिएगा, नहीं देना है तो वो आपका लुकआउट है, और उनसे डेटा भी आप कलेक्ट कर सकते हो. ये एक अप्रूव्ड मेथड मानी जाती आहे, प्रोव्हाइडेड आप उनको ट्रेन करोगे की प्रश्नावली कशी भरायची. ते सगळं झाल्यावर तुम्ही डेटा कलेक्ट केला. आता इथे तुमच्या पुढे 2-3 समस्या येतात. कुछ लोगों के माइंड में होगा कि भैया हम किसी को दे देंगे, वो पैसा देके डेटा एनालाइज कर देगा. It is up to you to judge that whether it is ethical or unethical. I don't know. It is perfectly fine for you. It is okay. But I would recommend you to encode that data, जिसको डेटा मैनेजमेंट बोलते हैं ना. आप लोग आपके एक्सेल में शाम को जाइएगा, एनालिसिस टूल पैक ऐड कीजिएगा. एनालिसिस टूल पैक ऐड करने के बाद आपको कई सारी टेस्ट जो हम यूज करते हैं, एनोवा 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, एनोवा, ये वो, पी टेस्ट, टी टेस्ट, दुनिया भरी की टेस्ट एक्सेल में भी है. और उसका एक हेल्प फंक्शन है. वो हेल्प में बताता है कैसा वैल्यू डालने का, तो वो बटन दबाने के बाद वो टेस्ट रन होगी. यूट्यूब पे इसके वीडियो भी है, वो डेटा का एन्कोडिंग कैसा करने का. हे करा बरं का. तुम्ही अल्टिमेटली कोणाकडनं एनालिसिस करून देणार असेल तर ते फाइन, पर जिन लोगों को आगे रिसर्च करना है ना, वो ये सीख लो, सो दैट आपको पता चलेगा. क्योंकि एग्जाम के दिन अगर कोई खट एग्जामिनर आता है, उसने वो अगर बोलता है कि भैया यही टेस्ट क्यों लगाई है, डेटा को बता, आप अगर उसका जवाब दे नहीं पाएंगे मुश्किल होगा. तो इसीलिए ये टूल है. आपने अब तक काम परफेक्ट किया, पर अब आपने गलत टेस्ट लगा दी, गलत डेटा को, हो गया कार्यक्रम खराब. यहाँ पे हर स्टेप पे आपकी मिस्टेक होती है, और जितनी ऊपर मिस्टेक होगी उसका कैस्केडिंग इफेक्ट नीचे आएगा. अगर यहाँ आपकी मिस्टेक हुई तो आपका इंटरप्रिटेशन में मिस्टेक आएगा और आपका थीसिस का वैल्यू 0 हो जाएगा. म्हणून या पद्धतीला आपण सायंटिफिक रिसर्च म्हणतो. साहेब इथे कोणत्याही स्टेपवर चुका कमी करायच्या. मी हे नाही म्हणत चुका नाही होणार, होतात, माझ्याकडनंही होतात. मी आज वर्षाला 2 ते 3 रिसर्च प्रोजेक्ट करतोय, होतात चुका, पण मग आम्हाला त्याच्यातून शिकायला मिळतं. सो आप अगर खुद वो करोगे और देखोगे कौन से डेटा को कौन सी टेस्ट अप्रोप्रिएट है, डिपेंडिंग ऑन आपने कैसा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया हुआ है, आपका काम हो गया. इंटरप्रिट करा, रिपोर्ट करा. राइट. सो अब आपण एक काम करेंगे, 12:21 झालेत ना, एक 10 मिनिटाचा ब्रेक घ्या, म्हणजे आपण येऊ 12:30ला. ही पर्टिक्युलर पीपीटी जी आहे ती आपण 12:50 ते 12:55 पर्यंत संपवू, आणि मग मी थेरॉटिकल फ्रेमवर्कला तुम्हाला 1:25 पर्यंत किंवा 1:20 पर्यंत नेईन, आणि मग आपण क्वेश्चन, मी तुम्हाला एक 10 मिनिटाचाही वेळ देईन, दोन्ही सेशनचे मिळून आपण कंबाईन क्वेश्चन घेऊ. चालेल. शार्प 12:30ला या. शार्प ओके 9 सर. मिनिटाचा आपण एक ब्रेक घेऊ. चालेल. ठीक, ओके सर, ठीक हो सर, ठीक है. ठीक है. फ्रेंड्स, आप लोग मीटिंग लीव मत करिए, मीटिंग को चालू रखिए, सिर्फ आप रिफ्रेश होके आइए 10 मिनट में. मीटिंग लीव नका करू.